स्वास्थ्य मंत्री परम आदरणीय श्री रामचंद्र माननीय राज्य मंत्री इस्पात एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय आदरणीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, माननीय राज्य मंत्री एमएसएमई मंत्रालय आदरणीय श्री भानुप्रकाश सिंह वर्मा जी, सचिव इस्पात श्री संजय सिंह जी, एडिशनल सेक्रेटरी स्टील मिनिस्ट्री और नारी शक्ति के प्रति रचिका सुकृति, various speakers of this conference, joined from iron steel industries from India, business officers representatives, fellow officers from steel ministry, gold ministry and other ministries, delegates of this conference from various industries, government and private, and friends from media. Let me first congratulate the steel ministry for organizing this conference, and it is of immense use to the coal ministry as well, that we get to know firsthand what does the industry or consumer want. I am glad to see that there is an ambitious plan to manufacture in India, and by the year 2030 we hope to produce 300 million tons from current levels of around 150 million. And still we need to know further that it is in sync with the coal production plan of the country. And domestic coal production by the captive mines and by the commercial mines will be able to meet your requirement. We have already planned the substitution of replaceable import with matches. And I also salute the spirit of the secondary steel industry, which is largely artisanal and despite challenges has been growing and doing reasonably well. Current production of coal in the country is around 730 million tons, but this year this will rise to about 780 million tons. And it's okay that power is a larger consumer, but I request that instead of looking at percentage, you look at what quantities of coal you require in terms of million tons. And we have done some planning, and I'll share it with you. And I'm happy to inform that captive mines have started giving us a huge contribution in coal production, and we look forward to captive and commercial mines to contribute more to the overall coal availability in the country. Bigger and increasing demand reflects a rebounding Indian economy, which is a very, very happy phenomenon for the country, which, along with the rest of the countries in the world, did suffer due to pandemic. Imports have reduced significantly. They will continue to reduce. However, our dependence on coal and high-grade thermal coal may have to continue for some more time. And this year, we will be able to reduce the import of coal by about 50 million tons. पिछले साल जहाँ हम 250 मिलियन टन 250 मिलियन टन इम्पोर्ट करते थे, इस साल 190 से 200 मिलियन टन रह जाएगा। और इस मांग को पूरा करने में डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन कंपनीज ने सबने बहुत ही बढ़िया सहयोग किया है। कोल इंडिया अपनी नॉर्मल कोल प्रोडक्शन जो 600 मिलियन टन के आसपास होता था, 630 मिलियन टन निकाल करेगा। सिंगरेनी कोलफील्ड लिमिटेड 55 से 60 मिलियन टन कर लेगा, और कैप्टिव माइंस जो 35-37 मिलियन टन लेती थी इस साल, तो 90 से 100 मिलियन टन लेंगे। तो दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू, इट इज नॉट जस्ट वन ऑफ इवेंट। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस सरकार ने कुछ पांच ब्रेकिंग कोल सेक्टर रिफॉर्म्स किए हैं। हमने ऑप्शन रिजीम को लिबरलाइज करके चेंज कर दिया, एंड यूज प्लान रिक्वायरमेंट एंड यूज की क्लासिफिकेशन को समाप्त कर दिया है। पर टन बेसिस बिडिंग को छोड़कर रेवेन्यू शेयर बेसिस में हम आ गए हैं, और उसमें अभी तक का जो ट्रेंड रहा है उसमें जो पहले लोगों को 100
रुपीज पर टन या 150 रुपीज पर टन जो भी एंड यूज होता था देना पड़ता था। अब वो कुछ माइंस को छोड़ के जो बहुत ही इंडस्ट्री के नजदीक है उनमें परसेंटेज बहुत बढ़ गया, लेकिन उस परसेंटेज को अगर मैं रुपी पर टन में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो वो 40 से 70 रुपए पर टन के रेंज में आ गए। तो कोयले की उपलब्धता और सस्ते कोयले की उपलब्धता जो सरकार का एक उद्देश्य था वो किसी हद तक पूरा हो रहा है। और जो कमर्शियल माइनिंग हमने लॉन्च किए हैं उसमें कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है। हमने एंट्री बैरियर जो एक्सपीरियंस होता था, जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उसका बढ़ा दिया है। माइनिंग प्लान की प्रिपरेशन, स्क्रूटनी, अप्रूवल, रिव्यू, इस प्रोसेस को भी हमने लिबरलाइज कर दिया है। जो लोग कोल माइन में हैं उनको पता है कि हमने इसको ऑनलाइन भी कर दिया है, और जो समय 6 महीने 8 महीने लगता था वो घट के 1 महीने से 45 डेज रहेंगे। हमने इसमें एक अपील का प्रोविजन भी इंक्लूड कर दिया है और 40% एक्सपेंशन भी ऑटोमेटिक दे रखा है, which encourages the industries to go for higher capacity in environment level. कैप्टिव ब्लॉक्स को हमने टोटल एनुअल प्रोडक्शन का 50% मार्केट में बेचने की इजाजत दे दी है। ये एक ऐसा इंड्यूसमेंट, एक ऐसा इंसेंटिव रहा है जिसकी वजह से कैप्टिव माइंस का प्रोडक्शन इस साल काफी अच्छा होने की उम्मीद है और ये रिव्यू कंटिन्यू रहेगी। इसमें केवल एक ही कंडीशन है कि अपने एंड यूज प्लांट की रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद वो 50% तक का एनुअल कोल प्रोडक्शन का बेच सकते हैं। और माइन की कैपेसिटी एनहांसमेंट के लिए भी हमने कोई बैरियर नहीं रखा है, कोई एतराज नहीं रखा है। और क्योंकि ये पिछले साल 1 अक्टूबर 2021 को ही हमने ये रिजीम इंट्रोड्यूस किया है, तो बहुत सारी माइन एनवायरमेंट क्लियरेंस और फॉरेस्ट क्लियरेंस उस समय प्रोसेस नहीं कर पाई, पर हमने उनके साथ कंसल्टेशन किया, एनरोलिंग भी कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस साल वो लोग भी अपनी एनवायरमेंट क्लियरेंस और एफटी क्लियरेंस की कैपेसिटी एनहांस करके अगले वर्ष में 2022-23 में और अधिक कोयले का प्रोडक्शन और अवेलेबिलिटी बढ़ा सकेंगे। जैसे जैसे डोमेस्टिक कोल की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, हमें उम्मीद है कि इनकी प्राइसेस वैसे तो स्टेबल हैं। कोल इंडिया ने नोटिफाइड प्राइस पिछले 4 साल से बढ़ाया है और अभी भी बढ़ाने का कोई योजना नहीं है। तो जबकि इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस $60 से $200 पहुंच गई हैं, कई ग्रेड में $400 पहुंची हुई है, लेकिन डोमेस्टिक कोल प्राइसेस भारत सरकार ने पूरी तरह से स्टेबल रखा है ताकि इंडस्ट्री ग्रो कर सकें। और जो हमने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट वेरियस सेक्टर्स को देखे हैं, इंक्लूडिंग जो स्टील सेक्टर, मेटलर्जी सेक्टर, दे आर वेरी एनकरेजिंग। सम ऑफ देम आर रिपोर्टिंग वेरी हाई प्रॉफिट, एंड उसकी तुलना में हमने कोल कंपनीज को इसमें प्रॉफिट लेने का नहीं अलाउ किया है। उनके प्रॉफिट बाय एंड लार्ज पिछले सालों जैसा ही रहेंगे। बड़ी खुशी हुई प्रेजेंटेशन में देख के कि गैसिफिकेशन को इस्तेमाल करने का प्रयास हो रहा है और उससे मैचिंग कोल मिनिस्ट्री ने इंसेंटिव दे रखे हैं। जो लोग कोयला ब्लॉक लेके गैसिफिकेशन में इस्तेमाल करते हैं, 10% टोटल प्रोडक्शन का यदि कोयला गैसिफिकेशन में इस्तेमाल करेंगे तो उनको रेवेन्यू शेयर में 50% रिबेट का प्रावधान है, जो पहले 20% था। अभी हमने इसी साल रिवाइज करके उसको 50% कर दिया है। गैसिफिकेशन के लिए लिंकेज की व्यवस्था नहीं थी। इसी साल हमारे माननीय कोयला खान और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री जी ने उसके लिए भी व्यवस्था अप्रूव कर दी है और एक स्पेशल लिंकेज एनआरएस सेक्टर की तरह ही गैसिफिकेशन के लिए भी उपलब्ध रहेगा। एक ये बता देने वाले मैं जरूरी समझता हूँ कि हमने कुछ कोल सेक्टर में रिफॉर्म्स किए हैं, मार्केटिंग में रिफॉर्म्स किए हैं, लेकिन जो एनआरएस लिंकेज के सिस्टम्स हैं वो कंटिन्यूड रहेंगे। मैं ये जरूरी समझता हूँ कि आपसे मैचिंग जो आपके एम्बिशन है 2030 के लिए 300 मिलियन टन, बाय एंड लार्ज जो हम देखते हैं कि जितना स्टील का प्रोडक्शन होता है रफली उतना ही क्वांटिटी डोमेस्टिक कोल की लगती है। तो कोयले के प्रोडक्शन के प्रोजेक्शन में जो देना चाहता हूँ वो 2024 पे वी विल क्रॉस 1 बिलियन टन। अभी देश में रफली 960-970 मिलियन टन का कोयले की खपत है, जिसमें 730 मिलियन टन देश में पैदा हुआ है और रफली 250-260-235 ऐसे मिलियन टन हम इम्पोर्ट करते रहे हैं, जिसमें
time we are capable of substituting with domestic coal. And when we reach 1 billion tons, a large part of the imported substitutable coal would have been replaced by domestic coal. 2030 तक हमारे जो नीति आयोग के साथ KPMG के साथ हमने मिलकर जो अध्ययन किए हैं, उससे हमने जो डिमांड प्रोजेक्शन निकाला है वो 1.3 से 1.5 बिलियन टन होगा। एंड हमने कुछ उसमें फ्लोट रख के कोल कंपनी के साथ जो योजना तैयार की है 1.7 बिलियन टन की चीज़ है। तो मैं एक तरीके से आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप बढ़ते रहें, कोयले की देश में कमी नहीं रहेगी। एंड साथ में ये भी एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि ऑल दिस विल बी डन इन एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मैनर, मूविंग टुवर्ड्स आवर कमिटमेंट फॉर net zero emission by the year 2070. We look forward to improved and innovative technologies that are more efficient in using less coal and cause least damage to the environment. And therefore, we are encouraging coal gasification. Coal India is also coming up with 4 coal gasification projects, and is looking forward to consumers of the various products of this gasification process. We are also assessing the need for a PLI scheme for coal gasification, and we will welcome inputs from all of you in whatever form you can send it to us. I'll again reiterate, there is no dearth of coal resources in this country, and by the year 2025, we will probably have surplus coal in this country. I admit लॉजिस्टिक हैज बीन अ चैलेंज। मार्च 2021 को जब वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ तो कोल इंडिया के पास 100 मिलियन टन का स्टॉक फिक्सेड थे और पावर कंपनीज के पास 27 मिलियन टन था। और जब स्टॉक इतना ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मली 50 से 65-70 मिलियन टन से ज़्यादा कभी कोल इंडिया में स्टॉक फिक्सेड पे रखा नहीं। जो 100 मिलियन टन का स्टॉक हो जाता है तो कोल प्रोडक्शन बैक डाउन करना पड़ा लास्ट ईयर। और एक तो रखने की जगह की कमी, दूसरा उसमें स्वतः आग लगने की एक टेंडेंसी होती है, जिनका क्वालिटी डिटेरियोरेट करता है। इन सब वजहों से पहले क्वार्टर में कोल प्रोडक्शन बैक डाउन करना पड़ा। तो एक मुझे ये विसंगति नजर आती है जब यहाँ स्पीकर आके कहते हैं कि देश में कोयले की कमी है, हमें कोयला नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ कोल इंडिया हाथ में 100 मिलियन टन लेकर बैठा हुआ है। ये कुछ मैच नहीं करता है। सो देयर इज अ नीड टू सिट डाउन विद कोल इंडिया एंड सॉर्ट इट आउट। मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ, पावर कंपनी को भी कहता रहा हूँ, आप लोगों को भी कहूँगा, आप कोल स्टॉक अपने प्लांट एंड पे बिल्डअप करें, क्योंकि लॉजिस्टिक्स इसमें चेन इतनी बड़ी है, इतने नट्स एंड बोल्ट्स हैं, इतने इफ्स एंड बट्स हैं कि छोटा सा भी कुछ पुर्जा ढीला होगा नहीं तो आपकी पूरी चेन इफेक्ट हो जाती है। और इसलिए जरूरी है कि आप अपने एंड पे कोल स्टॉक करके रखें। हम रेल मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वैगन की लोगों ने बताई बात, रेल की अवेलेबिलिटी की। माननीय रेल मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि जो अभी 520 वैगन करीब पर डे अवेलेबल हैं, वो बढ़ा के वो 100 वैगन को बाई सितंबर कर देंगे एडिशनल, एंड रफली 600 से 700 के बीच में इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने तक प्रतिदिन उपलब्ध रहेगा। साथ ही मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा, जिनके प्लांट्स कोल माइन के नजदीक हैं, वो अपना मेरीगो राउंड एमजीआर रेलवे अपना बना लें या कन्वेयर बेल्ट की स्थापना कर लें। इससे पर्यावरण को भी लाभ होगा, आपको भी कॉस्ट कम पड़ेगी। और कोल कंपनीज ने भी फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी के तहत लोडिंग सिस्टम को चेंज किया है ताकि टर्न अराउंड टाइम वेट का घटाया जा सके। और उसमें पेल होल्डर जो बेसिकली एक बकेट से उठा के वैगन में डालने की व्यवस्था होती है, उसको चेंज करके एक साइलो लोडिंग है जो कंप्यूटराइज लोडिंग होती है, और जो रेट नॉर्मली 2.5 से 4 घंटे लगता था उसको 1 घंटे में आदमी लोड करके दे देता है। और उसमें क्वांटिटी का वेरिएशन में नहीं आता है, कंप्यूटराइज लोडिंग है, तब तक उसमें अंडर लोडिंग ओवर लोडिंग की को नहीं रहती है।
रेलवे मंत्रालय अपना नेटवर्क एक्सपेंड कर रहा है, कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और ओवरऑल टर्न अराउंड टाइम घटाया जा सकेगा, रेट अवेलेबिलिटी बढ़ाई जा सकेगी। तो मैं समझता हूँ जो एक दिक्कत रहती है कि हम पैसा तो देने को तैयार हैं लेकिन अवेलेबल तो कर दो, वो अगले वित्त वर्ष के समाप्त होते तक वो समस्या काफी हद तक सुलझा दी जाएगी। एक और सूचना देना चाहूँगा कि कोल मार्केटिंग रिफॉर्म्स के तहत हमने लिंकेजेस को तो सुरक्षित कर लिया, लेकिन बाकी जो ढेर सारी विंडोज थी उनको समाप्त करके अप्रैल महीने से एक सिंगल विंडो में ऑप्शन हुआ करेगा। तो जो लोगों की ये शिकायत थी कि पावर के लिए रिजर्व हो जाता है, वो आपकी शिकायत समाप्त हो सकेगी। और कोल प्राइसेस के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि वी हैव केप्ट देम स्टेबल डिस्पाइट इंटरनेशनल प्राइसेस रॉकेटिंग स्काई हाई। कोल अवेलेबिलिटी स्टील मिनिस्ट्री के निर्णय जो आने से पहले थी तो छुट्टी, लेकिन मैंने कुछ आंकड़ा प्राप्त किया है। देश में टोटल जो डिस्पैच हुआ कोयले का वो 657 मिलियन टन था 2016-17 में, और अब बढ़ के फरवरी तक इस वर्ष पिछले वर्ष में 681.51 मिलियन टन हो गया कोल प्रोडक्शन। और इस साल मुझे उम्मीद है कि हम कोई 780 मिलियन टन के वर्ष को समाप्त करेंगे देसी कोयले के स्मिथ में। और जो रॉ कोल का डिस्पैच रहा है उसमें पिछले साल की तुलना में जो एनआरए सेक्टर को 110 मिलियन टन गया था, इस साल फरवरी तक 150 मिलियन टन हो चुका है। तो देयर इज अ ग्रोथ एंड इस सब में यदि आप देखें विनोद कुमार तिवारी तो एडिशनल वो 15.8 मिलियन टन लेता था हमसे 2016-17 में, वो 2020 जिसको हम नॉर्मल ईयर समझ सकते हैं 22.5 मिलियन टन अभी तक ले चुका है। मेरे पास फरवरी तक के आंकड़े नहीं है, लेकिन ओवरऑल डिस्पैच का मेरे पास है कि 130 मिलियन टन एनआरएस को गया है। और कोल इंपोर्ट नॉन पावर सेक्टर का पिछले साल 19 अगर नॉर्मल ईयर लेते हैं तो 180 मिलियन टन था, तो इस साल जनवरी एंड तक 150 मिलियन टन हुआ है। तो वी कैन सी कि देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन, जो कि इंटरनेशनल प्राइसेस के दबाव में भी हो रहा हो सकता हो, लेकिन एक अच्छा ट्रेंड है कि देसी कंपनियां उसको देसी कोयले से रिप्लेस कर पा रही हैं। हम डिसेंट्रलाइज्ड रेजिम और ओपन फ्री मार्केट कोयले की तरफ अग्रसर हैं। हमने नेशनल कोल इंडेक्स भी लॉन्च कर दिया है पिछले साल से, जो हर दूसरे महीने वेबसाइट पर अवेलेबल है। एक चीज ये माननी पड़ेगी, कोयला प्रोडक्शन एक लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड वाला प्रोजेक्ट होता है जिसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। आप सब जो इंडस्ट्री में जुड़े हैं उनको पता होगा। वो एक रेजिम को लिबरलाइज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग एनवायरमेंट क्लियरेंस फॉरेस्ट क्लियरेंस। और ये एक मुद्दा सामने बार बार आता है कि जो क्लियरेंस प्रोसेस है उसका एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकारों के हिस्से में आता है, विशेषकर एनवायरमेंट क्लियरेंस फॉरेस्ट क्लियरेंस स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और जो अभी फेडरल रेगुलेशन हैं दे मस्ट also have country wide perspective। बहुत सारे स्टेट अपना लिमिटेड पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं, और जैसे कि भारत सरकार ने किया है, कोयले को अब वो रेवेन्यू सोर्स की तरफ ना देखती, उसको देखती है कि ये इनपुट टू इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से जो ग्रोथ आएगी वो इकॉनमी को मदद देगी, उससे राज्य सरकारों का या भारत सरकार का भी और देश की जनता का भला होगा। तो वो एक नजरिया बदलने की जरूरत है। मैं विशेषकर ध्यान में लाना चाहूँगा सबके कि एक गांव, केवल एक गांव राजमहल माइन में ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का गाँव का नाम नहीं होगा, उसके सब पेमेंट हो चुकी है, आर के सारे बिल दिए जा चुके हैं, एम्प्लॉयमेंट दे दिया जाता है। कुछ लोग केवल उसको नहीं चल रहे हैं, उससे अकेले की वजह से 20 से 25 हजार मिलियन टन प्रतिदिन कोयला उत्पादित नहीं हो पा रहा। एक एक्सप्लोसिव की भी समस्या रहती है जो लोग माइनिंग में हैं, और
हम फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के साथ मिलकर उसको भी रिजॉल्व कर रहे हैं। यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से जो इम्पोर्ट को इम्पैक्ट पड़ा है, उसके बगैर एक्सप्लोसिव इंडिया में बन नहीं सकते थे। होपफुली नेक्स्ट ईयर देयर विल बी नो कंस्ट्रेंट एक्सप्लोसिव। कुछ लोगों ने सैंड की अवेलेबिलिटी की बात की है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता होती है कि मैन्युफैक्चर्ड सैंड की तरफ कोल इंडिया ने कदम बढ़ाए हैं। वेस्टर्न कोलफील्ड ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को अपने जो ओवरबर्डन है उनमें से पत्थर को क्रश करके सैंड की उपलब्धता दी है, विच इज वेरी कॉम्पिटिटिव। तो कोल इंडिया की बाकी सब्सिडीज भी इसको करने को तैयार हैं अगर कोई उनके साथ लॉन्ग टर्म बाइंग अरेंजमेंट या इंटरेस्ट दिखाए। अंत में केवल इतना कहना चाहूँगा कि आप अपनी ग्रोथ को इस बात को लेकर ना लिमिट करें कि देश में कोयले की उपलब्धता नहीं होगी। जो मैंने आपको आंकड़े बताए उसके हिसाब से जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा, होपफुली विल बी एबल टू गिव यू कोल, है ना। एंड जो हमारी प्लानिंग है कि जो एक कम आपूर्ति की जो हमारी समस्या रही है देश में, जिसकी वजह से कोल कोई बहुत भारी प्रेशर रहा है और अवेलेबिलिटी घटती रही है, हम प्रयास करेंगे कि कोयला एनफ अवेलेबल हो ताकि उसकी प्राइसेस भी मार्केट डिटरमिन हो जाएंगी। उम्मीद ये है कि वो अंततः घटेंगी और स्टेबल हो जाएंगी। इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।